Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, yes, you heard it right. Today we are going to talk about these 35 sunscreens right here with me that I have used over the last 2 years. Some of them were sent to me by the brands for collaborations. Some I received in PR, and almost more than half of them I have bought with my own money for either personal purposes or for research and review purposes. It's not going to be a too much in-depth sort of a video जहाँ पे कि मैं हर सनस्क्रीन के बारे में, उनके फिल्टर्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में वन बाय वन बात करने वाली हूँ, because after all we have got like 35 sunscreens to cover in a single video. I don't want this video to get too long and boring, so I have made a point that I have just included just about the right information, the precise information that you may need to make a decision for yourself as to एक particular skin type और skin need के हिसाब से कौन सी वाली अच्छी है, कौन सी वाली बेकार है, जो नहीं लेनी चाहिए, कौन सी महंगी है, सस्ती है, किसके फिल्टर्स कैसे हैं, किसको वाइट कास्ट का प्रॉब्लम है, किसका टेक्सचर कैसा है. बेसिकली जितनी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है उतनी बेशक आपको इस वीडियो से ज़रूर ही मिल जाएगी, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टू मच in-depth sort of a video. So if you were here for that, then I suggest that you try typing the name of this channel followed by that sunscreen, because there is a possibility that some of the sunscreens I may have spoken about in detail format in the past, so आप जाके search कर सकते हैं. Now for this particular video, it's going to be a very quick under 60-second sort of a mini review of each of these sunscreens, so you will get the information that you need. And also I would like to tell you, this video is not sponsored, and I have also made sure that इनमें से कुछ सनस्क्रीन्स ऐसी हैं जिनको मैंने अगर 6 या 7 महीने पहले यूज़ किया था, सो आई हैव मेड श्योर दैट आई हैव विजिटेड देयर वेबसाइट्स टू चेक फॉर देयर रिफॉर्मुलेशंस अगेन, बिकॉज टाइम टू टाइम जो ब्रांड्स होते हैं, एटलीस्ट जो रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपना फॉर्मूला रिवाइज करते रहते हैं बेसिस द कस्टमर फीडबैक और मे बी इन्फ्लुएंसर्स फीडबैक. दे कीप ऑन चेंजिंग द फॉर्मूलाज अ बिट. सो जिनको मैंने काफ़ी पहले यूज़ करा था उनको मैंने I have made sure that I have visited their websites and reconfirmed the formulas, and उसके हिसाब से ही आज का वीडियो एक updated format में ही मैंने बनाया है. So I'm very hopeful that this video is going to be of a lot of help to a lot of you viewers out there. Alright, so on that note, we are done with the intro here. Let's quickly start with the mini reviews. I hope you're excited. Let's go. Alright, so let's begin with sunscreen number 1. This is by the brand Derma Essentia. This is their SPF 50 PA++ sunscreen gel. This is a very silicone based gel based texture sunscreen. Very dewy moisturizing consistency it has. इसके टेक्सचर में आपको हल्का सा एक पिंक टिंट दिखाई देता है, जो कि विजिबली दिखाई देता है टेक्सचर में, लेकिन लगाने पे वो दिखाई नहीं देता है. So you can be rest assured in that department. Now this sunscreen has a very moisturizing consistency, so this is not going to give you a very matte finish. This is फॉर दोस्त जिनको एक ड्यूई फिनिश पसंद है, उनके लिए अच्छा रहेगा. फॉर्मूला की भी अगर मैं बात करूं तो इसमें दे हैव इंक्लूडेड ऑल द नेक्स्ट जनरेशन इनकैप्सुलेटेड फिल्टर्स. एक केमिकल सनस्क्रीन है ये. ऑल्सो इट इज इन्फ्यूज्ड विद क्रोनोशैरिडी फॉर्मूला. सो आई थिंक द जिस्ट ऑफ इट इज दैट फॉर्मूला वाइज इट्स अ गुड सनस्क्रीन, बट दिस इज फॉर दोज पीपल हु वांट दैट ड्यूई फिनिश इन देयर सनस्क्रीन एंड नॉट द मैट वन. इस पे लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए अच्छी है, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगी कि जितनी गर्मियां अभी चल रही है, मेरे ख्याल से अगर आपकी स्किन ड्राई, नॉर्मल या कॉम्बिनेशन है तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी. इनफैक्ट अगर ऑयली भी है लेकिन एक्सेसिवली एक्ने प्रोन नहीं है तो भी आपके लिए अच्छे से काम करेगी. लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन है और सेंसिटिव है, देन इट विल बी सब्जेक्ट टू पैच टेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो इन दैट केस यू मे वांट टू skip it, because this is not a completely matte finish sort of a sunscreen. On number 2 we have Ultra Defense SPF 50 by the brand Earth Rhythm. Now about this sunscreen, I have a completely opposite view than what I usually see a lot of YouTubers talking about. बहुत सारे YouTubers को मैंने बोलते सुना है अपने वीडियोज़ में कि ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छी सनस्क्रीन है. Now formula wise if I go, the sunscreen definitely has no problems, because ये भी एक broad spectrum sunscreen है. PA 4 times rating है इसकी. इसमें भी उन्होंने माइक्रो इनकैप्सुलेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है. सारे मॉडर्न जनरेशन फिल्टर्स हैं, तो फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऑनेस्टली आई डू फील दिस हैज़ अ वेरी स्टिकी, हैवी एंड सुपर ग्रीसी टेक्सचर. अगर इसको मैं थोड़ी भी क्वांटिटी में लेती हूँ तो भी मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ऑयली सा दिखने लग जाता है. कंप्लेक्शन भी बहुत ख़राब दिखने लगता है. इट हैज़ अ वेरी टैकी एंड अनकम्फर्टेबल फीलिंग टू इट. सो आई पर्सनली फील कि अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, स्पेशली इतनी गर्मियों के टाइम पे, तो ये सनस्क्रीन शायद आपके लिए वर्क नहीं करेगी. लेकिन अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन नॉर्मल या ड्राई है तो गो फॉर इट बाय ऑल मीन्स इफ यू वांट टू.
On number 3, we have a beautiful sunscreen by the brand Innisfree. This is their Daily Mild Sunscreen SPF 50. Again, PA 4 times rating है इसकी. I personally love the sunscreen, love the texture, love the overall feel of it, the packaging, everything about this sunscreen I loved. And it suited me also. It has good ingredients like Centella asiatica, aloe vera, it has green tea, all nice stuff. However, this does have a lot of fragrance जो आपको obviously smell करने पे नहीं आती है, but ingredients में listed है. And that too usually अगर last के 2-3 ingredients में होती है, I don't mind it honestly, because उतना ज़्यादा कोई वरी की बात नहीं होती है. बट इसमें वो इंग्रेडिएंट लिस्ट में काफ़ी मिडिल में फॉल करती है. तो आई थिंक अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है टू फ्रेग्रेंस एज सच, यू नो, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी यूजुअली स्किन ठीक ठाक रहती है, लेकिन जैसे ही दे यूज समथिंग दैट हैज हैवी फ्रेग्रेंस कंपोनेंट, देन द स्किन फील्स वेरी ट्रिगर्ड. सो इफ यू हैव अ स्किन लाइक दैट, देन इन दैट पर्टिकुलर केस दिस मे नॉट वर्क फॉर यू. हाउएवर, फॉर majority of people, even acne prone skin type, this sunscreen will definitely work, because मेरी personally भी बहुत sensitive और acne prone skin type है, लेकिन मुझे भी ये sunscreen बहुत अच्छे से सूट हुई है. I think the underlying thing is the fragrance bit here. तो अगर आपको fragrance ज़्यादा problem नहीं है, you will like it. On number 4, we have OMC and Oxybenzone Free Sunscreen by Requel, a brand that I trust. I really love this sunscreen. इसकी भी consistency थोड़ी सी dewy और moisturizing है, बहुत hydrating है. Good sunscreen. Now OMC और Oxybenzone के बारे में ऐसी एक theory है कि वो हमारी blood stream में enter कर जाता है, cancerous हो सकता है, हमारे अंदर बहुत से hormonal changes को trigger कर सकता है, hormonal imbalance कर सकता है, skin पे allergy कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. Now obviously a handful studies are done उसके बारे में, लेकिन I also know for a fact that a lot of studies are still going on. तो अभी भी ये completely evidence based नहीं है कि ऐसा होता ही है. लेकिन अगर आप इस बारे में थोड़ी भी फिनिकी हैं कि नहीं मुझे तो बिल्कुल ही Oxybenzone और OMC से दूर रहना है, तो in that case obviously this sunscreen will be a great pick for you. In fact I'll advise, अगर आपकी स्किन थोड़ी भी sensitive है, अगर आपको फंगल एक्ने होता है, या आपकी स्किन सुपर फ्रेजाइल है, तो ये एक बहुत सेफ सनस्क्रीन आपके लिए रहेगी. सो पर्सनली आई फील इट्स अ गुड सनस्क्रीन. इट विल सूट मोस्ट ऑफ द स्किन टाइप्स अनलेस यू हैव अ पर्सनल प्रेफरेंस. फॉर्मूला वाइज इट्स अ गुड सनस्क्रीन. ऑन नंबर 5 वी हैव द रेडियंस प्लस सनस्क्रीन बाय द ब्रांड Aqualogica. This, if I talk about the main ingredients, not the ones that are just mentioned on the front side of the packaging, but if I talk of the significant ingredients, it does have Suncat DE glycerine, aloe barbadensis leaf juice, this has niacinamide, this has betaine, this has watermelon. Now all the ingredients are very sensitive skin friendly also. So अगर summer के time पे आपकी skin oily acne prone है, इसका texture आपको definitely suit करेगा. बहुत light weight है और face पे भी बहुत comfortable feel होती है. As you guys can see, the packaging is also very handy, lightweight. So I think for the price they are giving you a good quantity. They are giving you a very good quality sunscreen and good protection. So overall I think this is a good sunscreen, and acne prone skin type के लिए suitable भी है, तो आप इस summers में इसको definitely try कर सकते हैं. On number 6 I have one of my personal favorites. This is by the brand Dr. Sheth's. This is their ceramides and vitamin C sunscreen. In one line I would say, अगर आपकी skin oily acne prone भी है या sensitive भी है, लेकिन अभी आपकी skin अगर एक broken barrier face से जा रही है, then this sunscreen will definitely help you. होता क्या है, जब हमारी skin का barrier compromise हो जाता है तो हम generally sunscreens use करना avoid करने लग जाते हैं, और क्योंकि उसको शाम में डबल क्लेंस भी करना पड़ेगा and 100 other things with that. In that case this sunscreen you will definitely enjoy this for sure. जिनकी skin नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ड्राई है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज एक बहुत मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है विद वेरी कंफर्टेबल एंड लाइट वेट कंसिस्टेंसी. लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली और एक्ने प्रोन भी है ना, लेकिन आप अपने बैरियर को इंटैक्ट करके रखना चाहते हैं, तो ये सनस्क्रीन आपको डेफिनेटली यूज करनी चाहिए. इसमें स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट्स भी हैं. इसमें 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है, 1% हाइलुरोनिक एसिड है, 2% विटामिन सी कॉम्प्लेक्स है, और इसमें मिनरल ऑर्गेनिक दोनों ही फिल्टर्स हैं. तो 360 डिग्री हिसाब से मुझे लगता है ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी क्वालिटी की है. सो एवरीबडी शुड यूज इट.
On number 7, I again have one of my personal favorites, and no guesses there. This is the Aqualogica Glow Plus Dewy Sunscreen. Need I say anything about this sunscreen? This is not just my favorite, this is everybody else's favorite also. Beautiful sunscreen, lovely texture, lovely formulation, PA 4 times plus rating है इसकी. इसके ingredients भी बहुत अच्छे हैं, filters भी बहुत अच्छे हैं. इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, इसमें जिंक ऑक्साइड है, उसके अलावा इसमें सोडियम पॉलीएक्रिलेट है, सनकैट DE है, ग्लिसरीन. Again, this has a lot of emollients. This has ceramide 11 also, phospholipids are also there, aloe vera, papaya, vitamin C, all nice stuff is there. So this is going to give you skin brightening effects also, will feel very comfortable on your skin during summers also. This is one of the sunscreens which I feel is beautiful when it comes to reapplication. Even if I reapply this sunscreen 10 times during the day, I don't feel a thing on my face. I think अगर आपकी skin sensitive और acne prone भी है तो भी ये sunscreen आपके लिए अच्छी है, और अगर dry combination है तो भी आपके लिए सनस्क्रीन बहुत अच्छी है. All in all, I think I'm kind of biased towards this sunscreen. I love it so much, so I should not say much, but just take my word for it. This sunscreen, I can vouch for it blindly. On number 8, I have with me by the brand Cheryl Cosmeceuticals. This is their Derma Shade SPF 30 sunscreen. SPF 30 है तो इंडोर्स के लिए बहुत अच्छा है. लाइट वेट फॉर्मूला है, कंफर्टेबल है, ऐसे स्प्रे फॉर्मेट में आता है. नाउ आई थिंक रेटिंग वाइज इट्स गुड, एंड इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे अच्छे ही हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हो जाती है लगाने के लिए, क्योंकि स्प्रे फॉर्मेट है. तो आई वुड प्रेफर इट फॉर माई बॉडी, लाइक हाथों पे, पैरों पे कहीं लगाना है तो. बट फॉर फेस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज बालों पे लग सकती है, कान पे लग सकती है, कपड़ों पे लग सकती है, ट्रांसफर हो सकती है. तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हो जाती है. ऑल्सो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो वो अगर आपको सूट कर जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बट आपके स्किन की पर्टिकुलर सेंसिटिविटी लेवल पर डिपेंड करता है. सम केसेस में लोगों को फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स सूट नहीं करते हैं. सो इफ दैट इज अ पर्सनल इशू विद योर स्किन, देन दिस सनस्क्रीन मे नॉट वर्क फॉर यू. सो पर्सनली इफ यू आस्क मी, I'm not gonna buy it again, simply for the fact that I feel it is super inconvenient. So this spray format for my body, I definitely don't mind, but for my face, I will pass. On number 9, we have with us UV Dog Silicone Sunscreen Gel SPF 50. This one is a good sunscreen for acne prone skin type. It has got a very oil free mattifying sort of texture. एक velvety primer type feel आती है आप जब आप इसको लगाते हैं, तो बिल्कुल भी oily और greasy नहीं है, हर तरीके की skin type के लिए अच्छा है. This is again free from any kind of dye, color and any harsh chemicals, any emulsifiers, oil for that matter. None of the bad stuff is there. So formula is very clean. Also this comes from the house of Brinton Healthcare, so the quality definitely has to be top notch. I personally feel it's a good sunscreen. Slightly on the expensive side. I think ये 700-800 कुछ रुपए की आती है, जहाँ पे कि मार्केट में अभी हमको 400-500 रुपए में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं. बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं 800-900 के आसपास जाने के लिए, और आप अपनी स्किन पे आपको वो प्राइमर फील वाले जो मैटिफाइंग सनस्क्रीन होती है, अगर आपको वो पसंद है तो फिर आपको ये सनस्क्रीन डेफिनेटली पसंद आएगी. On number 10, we have with us Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock. This is SPF 50. इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, मुझे पर्सनली इसका टेक्सचर ऐसा लगता है कि विंटर वगैरह पे मुझे ठीक लगता है लगाने के लिए, लेकिन समर्स में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा थिक लगता है. सो आई फील ingredients are nice, nothing too great or exclusive. They are nice. I think they can still do a good job with revising their formula. So though it did not trigger any bad reactions on my face, but I personally felt that the texture is little too greasy and thick for my liking. I feel that the texture could have been a slightly lightweight होता तो ज़्यादा अच्छा रहता acne prone skin type के लिए. तो summers में this is not a sunscreen that I personally like using. However, if you come from a dry skin family, you may enjoy this, but for oily acne prone skin type people, I will not recommend this. On number 11, we have with us Ayuga 2% Chandanam sunscreen. This one again is a very beautiful sunscreen, lightweight consistency, no white cast. लगाते वक्त हालांकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप ब्लेंडिंग अच्छे से इसकी करें, क्योंकि शुरुआत में मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि अगर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी ऐशी सी फिनिशिंग लगती है मेरे फेस पे. लेकिन अगर मैं उसको एक 10-15 सेकेंड के लिए अच्छे से ब्लेंड करती हूँ तो फिर वो सेटल डाउन आराम से हो जाता है.
over that part you need not worry much, and otherwise ingredients good, packaging good, price good, consistency good, everything good. summers के हिसाब से बहुत अच्छी सनस्क्रीन है and बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है. इनिशियली यू मे फील दैट यू मे गेट वाइट कास्ट, बट एज आई जस्ट मेंशन 10-15 सेकेंड में अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे, so that will not be a problem at all. On number 12 we have with us Minimalist SPF 60 PA 4 times plus. This again is a good sunscreen formula wise. It's photo stable. ये outdoors के लिए बहुत अच्छी है. It is pregnancy safe, it is acne safe. स्पेशली जिन लोगों को OMC, ऑक्सीबेंजोन, बेंजोफिनॉन उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, वो सब भी कुछ इसमें नहीं है. तो फॉर्मूला इसका अच्छा है, बट पर्सनली मेरे हिसाब से इसका टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा मुझे हैवी और थिक लगता है. बट आई एम नॉट ब्लेमिंग द ब्रांड और द फॉर्मूला फॉर दैट, बिकॉज SPF 60 है तो मैंने एक्सपेक्ट ही किया था कि थोड़ा सा थिक तो होगा. तो आई थिंक अगर आउटडोर्स में, जब मुझे पता है मैं धूप में बहुत घंटों के लिए रहने वाली हूँ, तो ये सनस्क्रीन मैं लगाना बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी. और आउटडोर्स के लिए मुझे लगता है एक फोटो स्टेबल सनस्क्रीन का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये अच्छा सनस्क्रीन है. लेकिन पर्सनली डे टू डे बेसिस पे दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई विल हैप्पीली अप्लाई, बिकॉज ये मुझे थोड़ी हैवी लगी. मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा सा बहुत देर तक, कम से कम 4 से 5 मिनट मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ब्लेंड होता है. एक तो नंबर 1 इज दैट. ऑल्सो थोड़ी देर के बाद वो पिल भी करने लगता है. और अगर आप भी इसको लगा रहे हैं ना, तो मेक श्योर आपने अंडरनीथ मॉइस्चराइजर लगाया हो, नहीं तो आपको भी पिलिंग वाली प्रॉब्लम इसके साथ आने वाली है. अदर देन दैट, गुड सनस्क्रीन, बट पर्सनली फॉर मी इट्स अ नो. On number 13, I'm going to talk about La Shield SPF 40 Sunscreen Gel. This one has a dimethicone based silicone texture. Now dimethicone के बारे में भी पुरानी काफ़ी स्टडीज़ हैं जिसमें लोग बोलते हैं वो कार्सिजेनिक है और वगैरह वगैरह. हालांकि न्यू स्टडीज़ के हिसाब से ये सब बिल्कुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रूव हो चुकी है. ऐसा कुछ नहीं है, ये कम्प्लीटली सेफ है. तो इसका टेक्सचर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको थोड़ा सा सिलिकोनी सा टेक्सचर पसंद है. बट दिस इज नॉट वेरी ऑयली और ग्रीसी. दिस डज फील लाइट वेट व्हेन यू अप्लाई इट इन लिटिल क्वांटिटी. लेकिन अगर आप थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा ऑयली लग सकता है, बट ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो मैटिफाइंग ही आएगा. द यूवी फिल्टर्स दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस आर जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड. नाउ ये कंप्लीटली एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी अल्कोहल या डाई उस तरह की हार्मफुल चीज़ें भी नहीं है. तो मुझे लगता है अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन भी है तो भी ये सनस्क्रीन आपके लिए वर्क करेगी. जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द क्वांटिटी व्हेन यू अप्लाई इट. अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन टाइप है तो मैं कहूँगी थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लगाइएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा मेहनत इसके साथ करनी पड़ सकती है. बट फॉर्मूला वाइज इट्स अ गुड सनस्क्रीन. ऑन नंबर 14 आई हैव येट अनदर फेवरेट ऑफ माइन, इन फैक्ट कंट्रीज फेवरेट फॉर दैट मैटर. दिस इज 1% hyaluronic acid sunscreen gel by the brand Dermaco, PA 4 times plus, SPF 50. गुड सनस्क्रीन, फ्रेग्रेंस फ्री. इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, विटामिन ई है, काफी हाइड्रेटिंग कंसिस्टेंसी है इसकी. तो फिर ये लगाने में भी बहुत हाइड्रेटिंग है और दिखने में भी कोई वाइट कास्ट नहीं देती. विद इन seconds it blends beautifully on your skin, and even if you have sensitive and acne prone skin type, your skin is thoroughly going to enjoy it. On number 15 we have the matte sunscreen SPF 50 by the brand Derma Essentia. Again, this one is a mattifying sunscreen, as the name suggests. It is oil free, very lightweight, feels very comfortable. दिस इज अ सनस्क्रीन जो कभी डिस्काउंट पे होती ही नहीं है. इस पे कभी 10 रुपए का भी ऑफ मैंने आज तक नहीं देखा. मैं कितने सालों से इसको ट्रैक कर रही हूँ, ये कभी ऑफ पे नहीं होती है. फॉर्मूला इसका अच्छा है, लेकिन वाइट कास्ट के बारे में जहां तक मेरा ओपिनियन इसके बारे में है, दिस इज नॉट वन ऑफ दो सनस्क्रीन्स जो आप ऑन द गो ऐसे लगा सकते हैं कि 5-7 सेकेंड में फटाफट से ब्लेंड हो जाएंगे. थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा अच्छे से ब्लेंड करना पड़ता है. लेकिन अगर आप अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं तो फिर ये सनस्क्रीन आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है. आपका फेस का कॉम्प्लेक्शन ऐसा ऐशी नहीं हो जाएगा इसके साथ, इफ यू हैव गिवन सफिशिएंट टाइम इन ब्लेंडिंग. सो दिस इज नॉट अ quick on the go sort of sunscreen, but overall it gives you a mattifying finish, so you rest assured कि उस डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. On number 16 we have with us the mineral sunscreen by the brand Derma Essentia. Again, as the name goes, this is a 100% mineral filter formulation. They have used pretty advanced mineral filters like lipochromin and all that. So I think formula wise a good sunscreen, but as it is a mineral sunscreen, you can expect a little bit of white cast with it, especially if you do not blend it really nicely. इसमें 25% जिंक ऑक्साइड यूज किया हुआ है. मेरे ख्याल से इसका फॉर्मूला अच्छा है टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन लगाने में जो एक कंफर्ट चाहिए होता है, जो हम लोगों को कई बार बहुत ही ज़्यादा जिन्हें वर्कअप करना पड़ता है, ऐसी सनस्क्रीन अगर आपको पसंद नहीं है, देन दिस इज वन ऑफ दोज सनस्क्रीन. सो यू मे वांट टू स्टे लिटिल अवे फ्रॉम इट इफ दैट इज योर प्रॉब्लम. बट इफ यू डू नॉट माइंड स्पेंडिंग दैट टाइम विद ब्लेंडिंग एंड
and all that, then this is a good sunscreen also. So mineral sunscreen है तो मेरे ख्याल से ये pretty much एक preference based चीज़ भी है. कई लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता chemical हो या mineral हो, एक अच्छी sunscreen होनी चाहिए बस. लेकिन अगर आप finicky हैं कि आपको mineral sunscreen ही यूज़ करना है तो उस लिस्ट के हिसाब से it's a good option. On number 17, I have with me Ultra Matte Sunscreen Gel by the brand Dermaco. This is SPF 60. Again, a sunscreen which I feel is so less spoken about from the brand because इस brand के बाकी sunscreens इतने अच्छे हैं कि उनके बारे में इतनी ज़्यादा बात होती है कि इसके बारे में उतनी होती ही नहीं है. मैंने बहुत कम लोगों को सुना है इसके बारे में बात करते हुए, लेकिन personally मुझे sunscreen बहुत अच्छी लगती है. However, I also have a lot of subscribers जिन्होंने मुझे पिंग करके कहा था कि उन्हें ये पसंद नहीं आई थी. Especially there was a particular girl जिसने point out करा था कि summers वगैरह के टाइम पे कैसे होता है ना, कुछ sunscreens के साथ जो लगाने के लिए बहुत मैटिफाइंग सी होती हैं, लेकिन जब धूप में उनको आप पहन के निकलते हो तो छोटे छोटे स्वेट के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं. सो देयर वाज अ गर्ल हु डिड कमेंट सेइंग कि मुझे बस वो इशू है इसके साथ कि ये वैसे दिखने में सही लगती है, लगाने में सही लगती है, लेकिन इसमें एक छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं. तो पर्सनली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था. तो आई थिंक इट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग और ऑल्सो उसका भी काफ़ी हद तक लेना देना इससे होता है कि आपने स्किन मॉइस्चराइज की थी कि नहीं, फिर आपने कितनी क्वांटिटी लेके उसको अच्छे से ब्लेंड किया था कि नहीं. ऑल दोज फैक्टर्स कम इन टू प्ले. सो मेक श्योर आप ये ही नहीं, कोई भी सनस्क्रीन यूज करते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चराइजर उससे पहले जरूर लगाना होता है हमको. इट्स नॉट कि आप डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा लें. और दूसरी बात, सनस्क्रीन को भी आपको टाइम देना होता है, अच्छे से ब्लेंड करना होता है, नहीं तो व्हाइट कास्ट भी आपको आ सकती है. बट अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन पूछेंगे, आई थिंक दिस इज वेरी अंडररेटेड सनस्क्रीन. SPF 60 की कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं, 60 की कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कम ही सनस्क्रीन होती हैं जो इतनी लाइट वेट और ऑयल फ्री महसूस हो के अपना काम अच्छे से कर सकें. अदरवाइज यूजुअली SPF 60 वाली सनस्क्रीन बहुत थिक होती हैं. इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं था, बहुत ही लाइट वेट प्राइमर लाइक फील है इसका, जो टेक्सचर है बहुत ज्यादा लाइट वेट है. तो आई थिंक आई पर्सनली लाइक्स दिस सनस्क्रीन इवन फॉर समर्स. On number 18, I have with me yet another beautiful moisturizing sunscreen which is very lightweight and oil free. This is by the brand Wishcare. This is their Wishcare Invisible Sunscreen Gel. Again, PA 4x plus, SPF 50, good quality, good filters. This even provides you protection against the blue light. It has a lot of antioxidants, good emollients. Formula मुझे इसका बहुत moisturizing और lightweight लगता है. I think summers के टाइम पे भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे खिंची और dry sunscreen पसंद नहीं है. तो if that is also one of your concerns, तो irrespective of your skin type, even if you have the most sensitive and acne prone skin type, you can still go for this sunscreen. As the name goes, this gives you a very invisible natural finish. It won't give you any white cast. Beautiful sunscreen, highly recommend. On number 19, I'm going to talk about a sunscreen which again is one of my most favorite sunscreens. अगर इन पूरी 35 sunscreens में से मुझे एक top 5 या top 7 में list down करना हो, this definitely makes a place there. This is by the brand Conscious Chemist. This is their Sun Drink Hybrid Sunscreen Gel, SPF 50, PA 4x plus. Beautiful sunscreen, barrier impaired skin के लिए बहुत अच्छी sunscreen है. Even if you have the most sensitive skin type, also this is going to work for you. Very lightweight, no white cast, feels absolutely comfortable on the face even in the harsh summers. and अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है, जो आई विश के और भी बाकी जो सनस्क्रीन्स ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट्स में इसको इनकॉर्पोरेट करें कि जो सनस्क्रीन्स जिनमें सेरामाइड कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. बिकॉज अदरवाइज यूजुअली जो सनस्क्रीन्स होती हैं अपना काम तो करती हैं बट साथ साथ में बहुत ड्राइंग भी हो जाती हैं स्किन के लिए, उनको शाम में ब्रेक डाउन करना भी बहुत मुश्किल होता है. ये सनस्क्रीन एक मॉइस्चराइजर लगाने के बराबर ही फील करती है और इसमें क्योंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एमोलियंस हैं और सेरामाइड्स हैं, तो ये बैरियर इम्पेयर्ड स्किन के लिए बहुत अच्छी है. स्पेशली अगर आप अपने 30s और 40s में हैं, स्किन की प्लम्पनेस का थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं, तो पर्सनली मैं ये सनस्क्रीन बार बार रिपीट करना प्रेफर करती हूँ. और अगर आप भी अपनी 30s में हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप इस सनस्क्रीन को जरूर ट्राई करें. On number 20, I'm going to talk about 360-degree block sunscreen gel. This promises you 360-degree protection against IR, which is infrared rays, also UVA and UVB, and then blue light and pollution. It is going to protect your skin 360 degrees. Beautiful sunscreen. It does deliver the promises that it makes. It does stand up to the name, and I think even consistency इसकी काफी comfortable है. Oily acne prone skin type के लिए बहुत अच्छी है. Mattifying सा texture है इसका. Again, it takes a little
little bit of time in blending. Be very mindful of the quantity when you take it in the very first place. But और ये भी आई थिंक वो सनस्क्रीन है जो थोड़ा सा 700-800 रुपए वाली रेंज में फॉल करती है, और तो अगर बजट आपके लिए कंस्ट्रेंट नहीं है तो ये सनस्क्रीन आपके लिए अच्छी रहेगी. Oily acne prone skin type के लिए this is a good sunscreen, so thumbs up from my side. On number 21 we have with us Ultra Matte Dry Touch Sunscreen Gel by Requel PA 4x+. This I think is the improved formula. इसमें IR protection है, अच्छी sunscreen है ये. Again very lightweight, consistency is good, summers के हिसाब से अच्छा texture है इसका. Felt really comfortable on the face. I think all skin types it will work with. ये completely water resistant नहीं है हालांकि, जो कि पैक पे लिखा हुआ है. मुझे लगता है मेकअप जैसे कि पैक पे लिखा हुआ है कि मेकअप वगैरह के साथ आप इसको कंफर्टेबली पेयर कर सकते हैं. I don't think so, and I don't think it is water resistant also to a very great extent. But overall अच्छी sunscreen है. Last में इसके ingredients में थोड़ा सा fragrance mentioned है, but that's the very last ingredient, so that shouldn't be a problem I think. With the texture I felt, though this is very lightweight, but you have to be very mindful of it. Like if you go a little overboard with the texture, you might feel a little greasy. So if you take it moderation में, then you will have absolutely no problem with this sunscreen. Next up we have 1% hyaluronic acid sunscreen serum by the brand Dermaco. Now Dermaco brand के अक्सर जो sunscreens होते हैं या कोई भी products होते हैं, formula wise उनमें as such कोई problem नहीं होती, अच्छे ingredients होते हैं. जैसे इसमें भी niacinamide है, hyaluronic acid है, all good. But as the name goes, इसकी consistency एक serum like है, एक thin lotion like consistency है, थोड़ी सी runny है. तो ये एक personal preference है. Like कई लोग गर्मियों के टाइम पे acne pimples वाले जो लोग होते हैं, कई बार उनको heavy वाले सनस्क्रीन्स पसंद नहीं है, जो कि एक मॉइस्चराइजर जितनी थिकनेस रखते हैं, उनको ऐसी सनस्क्रीन्स पसंद नहीं है. तो अगर आपको बहुत ही रनी सी लोशन लाइक कंसिस्टेंसी जितनी हल्की सनस्क्रीन्स पसंद है, तो ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, तो आपको ये सनस्क्रीन अच्छे रिजल्ट्स देगी. लेकिन एट द सेम टाइम कई लोगों के लिए वो प्रॉब्लम भी हो सकती है. लाइक कई लोग नहीं चाहते कि उनके जो एक्टिव एक्ने हैं उसके ऊपर वो लोग सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहते हैं. सो व्हाट इफ योर फेस हैज एक्ने पिंपल्स इन प्लेसेस, एंड then how will you control the amount of sunscreen that's going here and there, you know what I mean. So अगर आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हुए लगाना है, एक्ने वगैरह पे नहीं लगाना है, तो इसके साथ आपको थोड़ा वो इशू आ सकता है. बट फॉर्मूला वाइज ऑब्वियसली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिलायबल सनस्क्रीन है, अच्छा सनस्क्रीन है, बट कंसिस्टेंसी इज द ओनली फैक्टर दैट यू योरसेल्फ have to decide whether you are comfortable with using something of this thin consistency or not. On number 23 we again have a sunscreen by the brand Minimalist. This is their SPF 50. This comes with great ingredients like niacinamide, vitamin B5, vitamin F. सारे अच्छे ingredients हैं जो कि sensitive skin friendly भी हैं. However I felt that the consistency was little too thick for my liking. Summers के टाइम पे मुझे इतनी heavy sunscreens पसंद नहीं है. Like by heavy I don't mean that they will feel heavy. लेकिन what happens is अगर मैं बिल्कुल इतना सा अमाउंट लेके स्प्रेड करती हूँ, तो इट इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट मी इनफ फ्रॉम द सन. आई कांट अप्लाई इट एज अ मॉइस्चराइजर. सो इफ you apply your sunscreen as a moisturizer, this will have no issues. But अगर आप उसको 2 finger rule follow करते हैं या 1 spoon के हिसाब से जितना recommended होता है वैसे लेते हैं फेस के लिए, जो कि लेना टेक्निकली वैसे ही लेना चाहिए, तो अगर आप बताए हुए तरीके जितनी क्वांटिटी में लेते हैं तो ये थोड़ी सी थिक फील होती है. मुझे इसको ब्लेंड करने में भी मुझे टाइम लगता है. तो आई थिंक ड्राई कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन के लिए गुड सनस्क्रीन, बट जिनकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है उनको थोड़ी सी हैवी लग सकती है अगर वो बताई हुई क्वांटिटी के हिसाब से सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं. तो दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. On number 24th, we have with us the Clear Plus Invisible Sunscreen Gel by the brand Aqualogica. This is a beautiful sunscreen. Look at the packaging, so cute and very lightweight consistency. Comes with green tea and salicylic acid. Great for acne-prone skin type. And as the name goes, this has an invisible texture, a very clear texture, which means कई लोग जिनकी skin tone deeper होती है थोड़ी सी, उनको ये problem हमेशा होता है कि वो कितनी भी अच्छी sunscreen लगा लें, लेकिन वो उनका complexion थोड़ा सा greyish सा दिखने लगता है उसमें, स्पेशली अगर वो थोड़ी देर बाहर धूप में ज़्यादा देर रहते हैं तो, या मेल्ट होने लगती है सनस्क्रीन. तो इन केस अगर आपका भी वो प्रॉब्लम है तो एक इनविजिबल जो क्लियर टेक्सचर वाली सनस्क्रीन होते हैं उनके साथ ये प्लस पॉइंट होता है कि आप चाहे वीटिश हो या फेयर हो या डार्कर स्किन टोन्स हो, कोई भी आपका स्किन टोन हो, वो एकदम से आपका कॉम्प्लेक्शन जैसे ही दिखने लग जाता है और आपको कोई भी वाइट कास्ट जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होते. तो फॉर्मूला वाइज इट्स अ गुड सनस्क्रीन. आई थिंक एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए भी ये एक बहुत अच्छी कंसिडरेशन हो सकती है. तो ओवरऑल फ्रॉम माई साइड ग्रेट सनस्क्रीन.
On number 25, I have with me the Sun Cross Sunscreen Matte Gel. Now this one is SPF 50 PA+++. अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला की बात करूँ तो ये इतना ज़्यादा जेंटल है कि अगर आप एक 6 महीने या उससे ऊपर के बच्चे को भी इसको लगाते हो तो भी आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर आप लगा सकते हो. फॉर्मूला बहुत जेंटल है. आई थिंक इट इज़ अ मिनरल सनस्क्रीन. इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ केमिकल सनस्क्रीन एजेंट. सो जिन लोगों के लिए वो एक इशू है वो भी सॉर्ट आउट हो गया. However, personally I felt that the texture is not very comfortable. At least I am not a fan. मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा कम लगाया जाए तो आराम से वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं ज़्यादा लगाती हूँ तो मुझे बहुत ग्रीजी लगने लगता है. दिस इज़ व्हाट माय प्रॉब्लम इज़. इसलिए मुझे समर्स के टाइम में दिक्कत होती है. इसलिए मैं मेरे जो कुछ एक बंच ऑफ माय फेवरेट्स हैं उन्हीं को स्टिक टू करती हूँ, स्पेशली इन समर्स. मुझे एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना पसंद, बिकॉज वो ही उनकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर वन इज अ ग्रेट सनस्क्रीन फॉर्मूला वाइज, बट मुझे क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, सो आई विल अवॉइड पर्सनली I will avoid using it during the summer time, but I will definitely love to continue using it in monsoon or maybe later. Next up on number 26, I have with me yet another sunscreen by the brand La Shield. This is their mineral sunscreen SPF 50. This is a mineral sunscreen. Decent filters है, फॉर्मूला ठीक ठाक है, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ शिकायतें हैं. सबसे पहली चीज़, I don't know how to sugarcoat it. I hate the fragrance component. It's too much. It's like a cologne. It is just too much. इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस की क्या ज़रूरत है एक सनस्क्रीन में? I just don't get it. नंबर 2, इसका जो टेक्सचर है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. मतलब थोड़ी सी भी क्वांटिटी लगाओ तो भी इतना ग्रीजी और हैवी लग रहा था. तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी स्मेल दोनों ही नहीं पसंद. और द फैक्ट दैट इसमें इतना परफ्यूम है, जस्ट यू नो, इट जस्ट ब्रोक माई हार्ट. बिकॉज मेरा ला शील्ड के सनस्क्रीन्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है अभी तक. तो मैंने बहुत हाई होप से इसको लिया था, लेकिन मुझसे अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही है. मैंने 3 बार ट्राई करी थी, मुझे बॉडी पे भी अच्छी नहीं लग रही है ये. इट्स दैट बैड. सो आई पर्सनली फील इट्स अ नो फॉर मी. On number 27, I have with me Z-Block Zinc Oxide Sunscreen Gel. This one is UVA PA 4x+. It has a critical wavelength of about, I think, 370. Now, good formula-wise, a good sunscreen. I think oily acne-prone skin type के लिए wonderful sunscreen. Great formulation. Just a little bit. इसमें I think towards the very end, the last ingredient is perfume, which I believe is negligible. One could avoid it. Otherwise, texture-wise, formula-wise, this is superb for acne-prone स्किन टाइप एंड स्पेशली इवन सेंसिटिव स्किन टाइप. जब आप अपनी स्किन को लेके बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट, तब उन दिनों के लिए ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है. ये एक हर तरीके से केमिकल फिल्टर्स से भी फ्री है. तो जिन लोगों को मिनरल सनस्क्रीन पसंद है या जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन ही पे रिलाई करते हैं, उनके लिए एक अच्छा कंसिडरेशन हो सकता है. दिस इज फ्री ऑफ एनी केमिकल एजेंट. सो good sunscreen. Just last ingredient is perfume, but that is negligible. Overall, a very good sunscreen. Next up on number 28, I have with me VLCC Natural Sciences Water Resistant Sunscreen Gel Creme SPF 60. I hate it. I don't like it. I think I may have mentioned about it in one of my YouTube shorts or Instagram reels or maybe a video. I don't exactly remember, but I do recall talking about it very negatively. I did not like the formulation. Number one, I think it has a lot of fruit, a lot of basically botanical extracts, fruits and seeds and flowers and different sorts of oils, and that I'm very hesitant to use a sunscreen like that. I think this is definitely not meant for sensitive skin type people, and it also has tons of perfume, like not little bit, it has tons of it. So आपकी definitely आपकी skin की sensitivity level पर depend करता है, but largely मेरे ख्याल से बहुत से लोग जिनको एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम रहता है उन्हें डेफिनेटली इसे यूज़ नहीं करना चाहिए. So yeah, I think there are better formulas these days in the market, so we don't have to rely on this traditional जो ये सब brands आते होते थे ना. I should not generalize, so I'll not say, but you will understand. पिछले पूरे डेकेड में एक ब्रांड्स की मोनोपोली चलती आ रही थी मार्केट में, जिनका नाम देखते ही लोग खरीद लेते हैं. तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज ब्रांड लाइक VLCC, राइट. बट इससे बेटर फॉर्मूलाज मार्केट में अवेलेबल है. सो इवन अगर इसका प्राइस और कम भी होगा तो भी फॉर्मूला वाइज मुझे लगता है ये प्रोडक्ट
मैं तो नहीं लूँगी और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी। Alright, so on number 29th, we have with us a tinted sunscreen by the brand Dermaco. This is their 1% hyaluronic tinted sunscreen gel. Great sunscreen, zinc oxide, titanium dioxide, PA 4 times rating है, fragrance free है, hyaluronic acid है, अच्छे ingredients हैं, texture भी अच्छा है, mattifying है, lightweight है. And as the name goes, because it is a tinted sunscreen, तो you can use it on the days when you are in a hurry to step out और आपके पास makeup वगैरह करने का time नहीं है. Again, this is not a substitute to a concealer or a foundation as such. बिल्कुल मेकअप जैसा इफेक्ट आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी नॉर्मल स्किन को एक नेचुरल सा ग्लो देना चाहते हैं, उसको इवन आउट सा थोड़ा करना चाहते हैं, थोड़े बहुत आपके जो निशान हैं उनको थोड़ा सा कंसील सा करना चाहते हैं, तो ये एक आपको बीबी क्रीम सॉर्ट ऑफ आई थिंक कवरेज तो दे ही देगा. तो उस मामले में मुझे सनस्क्रीन अच्छा लगता है. एंड आई थिंक एक अच्छी टिंटेड सनस्क्रीन वही होती है जिसका फॉर्मूला भी अच्छा हो, फ्रेग्रेंस भी नहीं हो और सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रख के बनाया हो, और वो हर बात इसमें है. बस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. एंड यू नो यूजुअली आई फील कि जिनकी स्किन टोन थोड़ी सी डीपर है, तो फिर उनको एक कभी भी जब तक वो अपनी पर्टिकुलर शेड के अलाइन करके शेड नहीं लेते, तो उनके साथ हमेशा ये चांस रहता है कि जब आप कोई सनस्क्रीन टिंटेड वाली जब लगाएंगे, देर इज अ चांस इट माइट वर्क फॉर यू, बट देर इज अ चांस इट मे नॉट अलाइन विद योर रेगुलर स्किन टोन, और उसकी वजह से आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा एशी सा कॉम्प्लेक्शन दे सकता है. यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सो that's the only thing with this, and just be very careful when you apply it. It's not supposed to be rubbed. इसको ऐसे करके मसाज नहीं करना है, इसको थोड़ा पैट करके लगाना है, क्योंकि मेकअप की तरह से बीबी क्रीम सॉर्ट्स ऑफ कंसिस्टेंसी है, तो पैट करके अगर लगाएंगे, अच्छे से अगर लगाएंगे, यू विल डेफिनेटली हैव वेरी यू नो फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग सॉर्ट ऑफ अ स्किन. एक थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट तो आपको मिल ही जाएगा. तो या ऑन द डेज व्हेन आई एम इन हरी, आई डोंट हैव मच टाइम, बट डे टाइम में मुझे स्टेप आउट करना होता है और थोड़ा सा मुझे कवरेज चाहिए, तो आई लव यूजिंग दिस सनस्क्रीन, सो आई विल हाईली रिकमेंड. On number 30th, I have with me Lactocalamine sunscreen. This comes with kaolin clay and lemon extract. Supposedly, this is meant for oily acne-prone skin type, but I think this will not work. मुझे इसके formula से problem है. First of all, it has tons of perfume. Again, I'm repeating it, but it does have a lot of it. And वो भी वो अच्छी सुंदर वाली नहीं, जो कि pleasant होती है, वैसी वाली नहीं है. It is very annoying. It can give one migraine. It's that bad. Also, इसके जो texture में थोड़ा सा pink सा टिंट दिखाई पड़ता है, वो ट्रांसफर भी होता है. जब आप जैसे हम लैक्टोकैलामाइन जब लगाते हैं, तो कई बार उसमें थोड़ी सी पिंकिशनेस होती है ना, वो उसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, वैसा है इसके अंदर. तो जब आप अपनी स्किन पे लगाते हैं, आपको अजीब सा एक गोस्ट लाइक कास्ट मिलेगा और बिल्कुल प्लेजेंट नहीं होगा दिखने में. तो मुझे इसकी जो फिनिश है ना ओवरऑल, इवन आफ्टर लाइक 3 to 4 minutes ऑफ ब्लेंडिंग ऑल्सो, आई हैव ट्राइड दैट ऑल्सो, दैट मे बी आई हैव नॉट वेटेड इनफ, तो चलो मैं थोड़ा वेट करके देख लेती हूँ, बट नहीं, नथिंग वर्क्स विद इट. इसका जो फाइनल लुक आता है ना, बहुत ही बुरा आता है. इसका टेक्सचर भी अच्छा नहीं है, इसका फॉर्मूला भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. और मैंने इसको 2 से 3 बार अलग अलग वेदर में ट्राई करा है, घर के अंदर भी ट्राई करा है, बट ईच टाइम I did not enjoy using it, so it's a no for me. Alright, on number 31 I have with me La Shield Physico Matte Sunscreen Gel. This one has 25% micronized zinc oxide. ये again एक chemical sunscreen नहीं है, और इसका भी फॉर्मूला एक्ने प्रोन स्किन टाइप को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है. तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कम्प्लीटली लाइट वेट, या जिसे कह सकते हैं ना नॉन ग्रीसी, वैसी नहीं है. थोड़ी सी तो मुझे ऑयली सी लगती है. तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर आप बहुत कम क्वांटिटी लेंगे तो फिर आपको एक अच्छी फिनिश अचीव कर पाएंगे. लेकिन अगर आप थोड़े से ऑन बोर्ड हो जाते हैं क्वांटिटी में, थोड़े से ओवरबोर्ड हो जाते हैं क्वांटिटी में, तो फिर आपको थोड़ा सा टैकी सा अपीयरेंस आएगा, विच यू मे नॉट एंजॉय ड्यूरिंग द समर्स. सो दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, बट आई फील अदरवाइज फॉर्मूला वाइज एक्ने प्रोन स्किन टाइप एंड सेंसिटिव स्किन टाइप कैन वेरी हैप्पीली यूज इट. ऑन नंबर 32 आई हैव अ सनस्क्रीन विद मी, जिसके बारे में मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ बहुत डिटेल में मेरे चैनल पे बात भी की थी. दिस इज अ न्यू लॉन्च बाय एक्वालॉजिका. दिस इज देयर D10 Plus Dewy सनस्क्रीन. दिस कम्स विद चेरी टोमेटो, हाइलुरोनिक एसिड एंड अदर गुड इंग्रेडिएंट्स. इसमें काफी अच्छे एमोलिएंट्स हैं, बहुत हाइड्रेटिंग कंसिस्टेंसी है इसकी. और जैसे कि हम जानते हैं कि जो चेरी टोमेटो होता है उसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड दैट इज सुपर रिच इन विटामिन सी कंटेंट ऑल्सो. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू रिमूव
the pigmentation a little bit. Like, this cannot obviously work as a pigmentation removal product, but if you are in the process of getting rid of that tan from your face, you are already using some pigmentation treatment products and also उस टाइम पे अगर आप डे टाइम में इसकी हेल्प लेते हो तो वो ट्रीटमेंट्स भी अच्छे से असर कर पाएंगे और आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल वे में समर्स के टाइम पर आपकी स्किन को सन रेज से अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप और सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए भी बहुत अच्छा है। रीप एप्लीकेशन भी इसके साथ बहुत कंफर्टेबल है, सो 10 on 10 from my side. Okay, so with that I have finished 32 sunscreens and my cart is empty, but I still have to talk about 3 more sunscreens that are not here with me right now. I threw away their packaging few days ago because वो खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने उन पर एक YouTube Shorts वीडियो बनाया था डेडिकेटेड, जहाँ पे मैंने बात की थी about the sunscreens that I'm never going to buy again and why. तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसके बारे में बताया था, आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, but here just to tell you briefly about the sunscreens that I'm talking about and why will I not buy them again. Let me just try to explain to you briefly. On number 33rd, I'm going to talk about a sunscreen from the brand Tricone, that is their SPF 60. They sent it to me in PR, I think. कंसिस्टेंसी से मुझे कोई खास शिकायत नहीं है, काफ़ी लाइट वेट और मैट कंसिस्टेंसी थी, लेकिन मुझे उसका फॉर्मूला पसंद नहीं आया था। एक तो उसमें बहुत सारा परफ्यूम था, दूसरा उसमें फंडामेंटली भी बहुत चीज़ें रॉन्ग थी। लाइक उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लावर सीड्स एक्सट्रैक्ट्स, बहुत सारे बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करे हुए हैं जो जिनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और बहुत सारी चीज़ों के ऑयल्स यूज़ करे हुए हैं जो सनस्क्रीन में होने से एक तरीके का इट्स you're always doubtful if it can be used by acne prone skin type people or no. Another thing is उसमें उन्होंने बहुत high concentration of vitamin C और kojic acid use किया हुआ था, which I think can play around with the photo stability of the sunscreen. It kind of affects that, so मुझे वो that part I'm not comfortable with. Also उसमें L-glutathione भी use किया हुआ था. Now all of this makes the ingredient list to be very questionable to somebody like me. So अगर आपको थोड़ी बहुत भी awareness होगी तो you will be able to sense that something is wrong there. So Tricone wali sunscreen is just a no-no for me. Then on number 34th and number 35th, I have again both the sunscreens by Lotus brands, their invisible sunscreen gel, and one is their daily sunblock one. दोनों ही जो sunscreens हैं उसमें भी बहुत सारे botanical extracts यूज़ किए हुए हैं, उसमें मिथाइल पैराबिन है और अगेन उसमें बहुत सारा परफ्यूम है। और जिन भी दिनों पे मेरी स्किन थोड़ी बहुत सेंसिटिव होती है तो मैंने हमेशा देखा है उनको यूज़ करने से मेरी स्किन और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है और उस पर ब्रेकआउट्स आने की टेंडेंसी रहती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये जो लास्ट के तीनों सनस्क्रीन्स मैंने आपको बताए ये डेफिनेटली एक्ने प्रोन स्किन टाइप और सेंसिटिव स्किन टाइप को यूज़ नहीं करने चाहिए। सो दैट्स माय ओवरऑल वर्ड ऑन देम। ऑलराइट देन, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई एम गोना सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वन। अंटिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटीफुल।